Good morning, student. Now in previous video we already done three questions, question 1, 2 and 3. Now the next three question 4, 5 and 6 we will take here. So before that I will explain one thing, and that is angle in the same segments are equal. Angles in the same segments are equal. I will explain here. Angles, so here I will explain. Angles in same segment are equal. Angles in same segments are equal. Idhar angles in same segments are equal. We draw a circle. This is of your circle. Okay. Now, if I draw here AB, AB is the segment, and in the AB segment, what we write here? See, this is of your one segment. ये हो गया आपका एक segment, और ये हो गया आपका दूसरा segment. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे दो एंगल बना रहा हूं. चेक करो. Here, this is of your one angle, angle C, and another angle also we will make in the same segment D. Now, if I consider this is the center of the circle O, okay, and join this one. So can we write here angle ACB is equals to half of angle AOB? क्योंकि हमने ये थ्योरम देखा है. क्या था थ्योरम में? एंगल ACB is equals to half of angle AOB. तो ये थ्योरम में हमने क्या चेक किया कि what we check here, we done here the measure of angle at the center of the circle, means the angle subtended by the R at the center of the circle is twice the angle subtended by the same R in the remaining part of the circle on the circle. तो हमने देखा ACB is equals to half of AOB. अब ये जो एंगल है, ये एंगल भी देखिए, चेक करो, एंगल ADB. This is also equals to half of angle AOB. Got it? Because this angle is also angle subtended by this R. तो ये दोनों एंगल कैसे देखो, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ AOB है, हाफ ऑफ AOB है, तो सेम हो गया ये. Therefore angle ACB is equals to angle ADB. So similarly here again we can take here one more example for you people. So directly I will tell you, that is, if this is of your circle, if this is of your segment, so this angle ACB and the second angle ADB, both the angles are same. If it is of 70 degree, this is also equals to 70 degree. Understood? The same concept we will apply here. So in the question number 4, what is the given information? The given information is angle ABC is equals to 69 degree. ABC, अब ये कहाँ पे है वो चेक करेंगे हम लोग. Angle ABC is equals to 69 degree and angle ABC, here A and here what? D. ABC is equals to 69 degree, means ये वाला एंगल दिया है आपको 69 डिग्री. कितना दिया है? 69 डिग्री. उसके बाद में एंगल ACB is equals to 31 डिग्री, ये दिया है 31. अब ये दोनों एंगल से यदि मैं ट्राइंगल ABC कंसीडर करता हूं तो मेरे पास तीन एंगल है. पहला एंगल है BAC, दूसरा एंगल है ABC और तीसरा एंगल है ACB. ये तीनों एंगल में से दो एंगल हमारे पास है तो हम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं. गॉट इट? सो इन ट्राइंगल, सो फॉर द सॉल्यूशन what we write here, in solution what we write, in triangle ABC, angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equals to 180 degree. Angle sum property, angle sum property. Got it? इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट अप करेंगे. ABC
ABC, this is given as a 69 plus ACB is given 31 plus angle BAC is equals to 180. So angle BAC is equals to 180 minus sum of these two angle. 9 plus 1 10 carry 1, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, that is of equals to 100 और उसको ट्रांसफर किया तो minus 100. So angle BAC is equals to 80 degree. Understood? अब एंगल BAC तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया. अब BC क्या है? एक कॉर्ड है. अब BC कॉर्ड है तो BC कॉर्ड की वजह से ये वाला एक सेगमेंट बन गया और ये बन गया दूसरा सेगमेंट. तो इस सेगमेंट में तो कोई एंगल नहीं, मगर इस सेगमेंट में दो एंगल बने हुए हैं. सो नेचुरली एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. नाउ एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. तो यहां पर एंगल BAC के साथ में BDC is equals to एंगल BAC, मगर BAC का मेजरमेंट आपने निकाला 80 डिग्री. सो एंगल BDC is also equals to 80 degree and this complete the solution. Understood? Now the second one. सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम टाइप में हम लोग करेंगे सॉल्यूशन. पहले क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं हम लोग. A B C D are the 4 point on the circle. 4 पॉइंट है यहाँ पे A B C and D. On the circle एक सर्कल पर है. यहाँ पे दिया AC and BD are intersect at point D. AC और BD intersect किया E में. अब such that BEC कहां पे देखो BEC. So this angle is of 130 degree. It is given. And angle ECD is equals to 20 degree. यहां पे दिया है आपको ये 20 डिग्री. आपको फाइंड आउट करना है एंगल BAC मींस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अंडरस्टूड? Now if you find this angle, so naturally this angle and this angle both are same because both the angles are on the same side of BC. BC के same side में है तो BAC BDC दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे. So here we want to find the first angle BDC. ये वाला फाइंड आउट करेंगे. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा. कौन सा ट्रायंगल लेंगे? CED. अब CED में ये तीन एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे. एक तो यहाँ पे आपके पास 20 है. ये वाला फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर से तो ये मिल जाएगा आपको. तो सबसे पहले लीनियर पेयर लगाएंगे हम लोग. सो हियर एंगल विच वन? पहला एंगल लेंगे BEC प्लस एंगल DEC is equals to 180 because they forming a linear pair. क्या फॉर्म कर रहे हो? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब यहां पे BEC का वैल्यू है 130 डिग्री. सो 130 लगाएंगे प्लस DEC is equals to 180. Therefore angle DEC is equals to 180 minus 130, that is of equals to DEC is equals to 50 degree. तो ये मिल गया आपको 50 डिग्री. इतना समझ में आ गया? अब यहां पर DEC is equals to 50 डिग्री आ गया. DEC यानी ये वाला हो गया आपका 50 डिग्री. अब आप आराम से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. गॉट इट? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? DEC लेंगे. DEC दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल चेक करेंगे. एंगल DEC प्लस एंगल DCE. DCE का मतलब DCA भी होता है क्योंकि सेम एंगल है. ओके देखो यहां पे दिया है 20 डिग्री DCE प्लस एंगल EDC is equals to 180 डिग्री.
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यू पुटअप करेंगे। DEC का वैल्यू है 50 डिग्री प्लस DCE का वैल्यू है 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70। माइनस 70 कहां से आया? 50 प्लस 20 70 किया और 70 को हमने ट्रांसफर किया तो आपको मिल गया माइनस 70। सो एंगल EDC इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 110 डिग्री। अब एंगल EDC को मैं BDC भी बोल सकता हूं। सो देयरफॉर एंगल BDC इज आल्सो इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्लियर? कितना समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ेंगे। BDC ये आपका आ गया है 110। अब BC इज वन ऑफ द सेगमेंट, कॉर्ड है यहां पे। अब ये कॉर्ड है तो इस कॉर्ड के वन साइड में दोनों एंगल बने हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब कौन से एंगल बने सेम सेगमेंट में वो देख लेते हैं। एंगल बना BAC, ये एक बन गया BAC, BDC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने हैं, इस साइड में बने हैं, तो नेचुरली दोनों एंगल का मेजरमेंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू BDC। BDC का मेजरमेंट आपने फाइंड आउट किया 110, तो ये आ गया 110 डिग्री। ओके, अब यही एग्जांपल आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से करना है आपको। आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें 10 मेथड से आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे आप देखो, चेक करो। ये आपका 20 है तो ये भी 20 हो गया, ये 30 है तो ये 50 आ गया, ये 50 है और ये 20 है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हैं आप फाइंड आउट। गॉट इट? हमने इस तरह से फाइंड आउट किया, आप उस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, 15 मिनट हुआ तो बताना मुझे। यस, नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, 15 हुए तो बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द वर्टाइसेस लाई ऑन द सर्कल। सभी के सभी वर्टाइसेस कहां पे है? सर्कल पे है। यदि सभी वर्टाइसेस सर्कल पे है तो वो क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या कहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect. तो AC and BD both the diagonals intersect at point E. DBC is equals to 70 डिग्री। यहां पे देखो एंगल DBC दिया है, तो DBC कहां है? देखो DBC ये वाला एंगल हो गया आपका 70 डिग्री। गॉट इट? BAC is equals to 30 डिग्री। BAC मींस ये वाला एंगल, ये आपका आ गया 30 डिग्री। गॉट इट? फाइंड द एंगल BCD। आपको क्या फाइंड आउट करना है? BCD फाइंड आउट करना है। तो BCD कहां है? देखो पहले BC और ये D, यानी ये वाला एंगल पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए यहां पर C। देखो इधर BDC BCD यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा पहले। ओके, दिस ट्रायंगल वी कंसीडर हियर। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए मेरे पास इसका मेजरमेंट होना जरूरी है। गॉट इट? अब उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे देखो, चेक करो। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका BC, दिस इज ऑफ योर BC। ये एक एंगल आ गया यहां पे, दिखाई दिया D, और दूसरा एंगल आ गया यहां पे A। ओके, अब ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है, ये सेम सेगमेंट है। अब सेम सेगमेंट के मींस ये होगी आपकी कॉर्ड, और इस कॉर्ड के एक ही साइड में दो एंगल बने हुए हैं,
तो नेचुरली ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अंडरस्टूड? मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल बिकॉज बोथ द एंगल्स फॉर्म इन अ सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, ये वाले सेगमेंट में, मींस ये कॉर्ड के इस साइड में बने हुए हैं, तो नेचुरली ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां पे BC इज द कॉर्ड, ताकि आपको समझ में आए। BC इज अ कॉर्ड, ओके, एंड एंगल, कौन से एंगल, BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर हो गया इतना? अब ये क्लियर होने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये तो आपके पास आ गया, कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं BCD। सो ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BCD। BCD में तीनों एंगल का एडिशन हो गया 180 डिग्री। सो एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब BCD जो आपको फाइंड आउट करना है, BCD तो एज इट इज रखते हैं BCD प्लस BDC आपने फाइंड आउट किया है 30 डिग्री प्लस DBC 70 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल BDC इज इक्वल्स टू, सॉरी BCD नहीं, BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 30 100, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 80। ये आ गया आपका BCD इज इक्वल्स टू 80। कितना समझ में आ गया? अब ये तो आपके पास पूरा एंगल आ गया BCD इज इक्वल्स टू 80, पूरा एंगल आ गया। अब आपको क्या दिया है, AB इज इक्वल्स टू BC, ये तो हो गया, यहां तक खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आगे क्या दिया है, AB इज इक्वल्स टू BC दिया है। सो एज AB इज इक्वल्स टू BC, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, देयरफॉर अब AB मींस ये वाला सेगमेंट है, BC मींस ये वाला सेगमेंट है। अब यहां पे यदि मैं सर्कल बनाता हूं, ये बन गया मेरा सर्कल, ये आ गया BC और ये आ गया आपका AB इज इक्वल्स टू BC, यहां पे A B और ये C। तो ये दोनों साइड यदि इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल बनेंगे कि नहीं? तो ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। कौन से दोनों एंगल, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, BAC इज इक्वल्स टू BCA। अब BAC कितना है आपका, 30 डिग्री है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये हो गया आपका, ये है आपके पास 30 डिग्री, तो ये भी बन गया आपका 30 डिग्री। सो एंगल BAC कितना है आपका, 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल BCA इज आल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री, आ गया 30 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा कितना था, 80 था BCD, है ना, ये पूरा एंगल 80 था, मगर BCD के हो गए दो पार्ट्स। तो एंगल BCD यहां पे लिख लेता हूं मैं, BCD इज इक्वल्स टू एंगल BCA प्लस एंगल ACD। देखो BCD ये वाला जो एंगल है, इसमें दो एंगल है। कौन से दो एंगल है, BCA और ACD, ये दो एंगल है। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से ले सकते हैं हम लोग। अब BCD आपके पास में 80 है, इज इक्वल्स टू BCA आपने फाइंड आउट किया 30, ये हो गया 30 प्लस एंगल ACD, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल्स टू 80, और इसको 30 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 30 हो गया, तो 80 माइनस 30 कितना हो गया, 50। तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। ACD हो गया आपका 50 डिग्री, ACD ये आ गया आपका 50 डिग्री। क्या मैं ACD को ECD नहीं लिख सकता, क्योंकि सेम लाइन पे है वो E, देयरफॉर एंगल ECD इज आल्सो इक्वल्स टू 50 डिग्री, क्योंकि सेम एंगल है
नाम थोड़ा अलग है मगर एंगल कैसे है, सेम है। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बनाना है। आप डायग्राम अलग अलग डायग्राम बनाते जाइए तो आपको एकदम अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमको दिया क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन। यदि आपको गिवन इंफॉर्मेशन समझ में आया तो नेचुरली आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।